I wish to discuss another topic, which is trying to get perfection, folks. Now, I believe, folks, that in this exam we can't have perfection. जैसे कल I think I was talking to Kushi and I was talking about the fact कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कितने टेक्स्ट पढ़ लोगे and you can't study each and every मतलब एक फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट पढ़ना है उसको पढ़ने के लिए आप 4 तरीके से पढ़ लो. But that's not what UPSC's focus is, or not. That's not what the focus is for any particular examination. The idea is to know the subject and then see the PYQs and then apply it. If you are able to satisfy that need, that is more than sufficient. And uske liye having a look at PYQs is the most important thing. And I've told this to most of you that if you're not going through the PYQs, you're not doing 60% of the work. 40% of the work is only studying. Rest 60% of the work comes from seeing PYQs, writing answers. तो ये जो aspect है ये बहुत ज़्यादा missing है from a typical aspirant. और वो चाहे वो ये वाला एग्जाम दे लो कि आप CVT का एग्जाम दे लो या कोई भी एग्जाम दे लो. If you're not adapted yourself to how the questions are being asked, you're not prepared yourself for the examination. So that is one thing that I wanted to discuss. The other thing is that 95% जो लोग होंगे वो ये काम करेंगे. जैसे बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है in civil services and so a lot of people say that competition बहुत ज़्यादा है civil services के अंदर and चाहे वो CAT हो या किसी एग्जाम में हो. तो that's not the case actually. आपका हर जो भी एग्जाम लोगे उसके अंदर जो कंपटीशन होता है वो सर 20,000 लोगों के अंदर, चाहे वो कैट का एग्जाम ले लो चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जाम ले लो, उसके ऊपर जो लोग हैं वो सीरियस ही नहीं है. इफ़ यू सपोज यू आर राइटिंग दिस ईयर्स सिविल सर्विसेज एग्जाम, इफ़ योर स्कोर इज लेस देन 70 मार्क्स तो वो सीरियस कैंडिडेट ही नहीं है. सीरियस कैंडिडेट जो है यूजुअली जो सीरियस कैंडिडेट है वो उसका 70 से ऊपर नॉर्मल स्कोर आ जाएगा अनटिल अनलेस कोई बहुत फंडामेंटल इशू है. सो ये हमारा जो स्प्रेड होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है और उस 20,000 लोगों में से आपको IAS बनना है rather than saying कि 5 लाख लोगों में से IAS बनना है. And if you're working for say 5-7 hours every day, you're already there in that 20,000. It's just that you need to modify your strategy to come up, and be it anything. अगर आप for example if you're working out or if you're running, if you're gymming, if you're playing guitar, कोई भी चीज़ अगर आप 20-25 मिनट आधा घंटा भी अगर आप कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस कर रहे हो, यू आर बेटर दैन द 95% ऑफ फोक्स हु आर डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. सो इट इज़ द कंसिस्टेंसी विच मैटर्स एंड वो अप्स एंड डाउन्स नहीं होने चाहिए आपके प्रेप के अंदर. एंड दैट्स द आइडिया ऑफ D3 एज वेल. कि जैसे आई थिंक आई गॉट अ कॉल या मैसेज फ्रॉम समवन इन द क्लास विद रिस्पेक्ट टू कि 2-3 दिन से पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसे अश्विनी की शायद से नहीं हो रही थी. तो क्या होता है, एक ट्रेडिशनल एक नॉर्मल एस्पिरेंट की लाइफ में अप्स आएंगे और फिर जब जो डाउन्स आएंगे वो ऐसा आएगा, वो डाउन्स आएंगे कि वो पता ही नहीं चलेगा कि 5 दिन कहाँ चलेंगे, 7 दिन कहाँ चलेंगे. एंड इफ यू आर कंसिस्टेंट विद द क्लासेस, द आइडिया इज कि अच्छा सुबह एटलीस्ट मुझे ये क्लास अटेंड करनी है. एंड वंस योर डे स्टार्ट्स वेल, देन देयर इज दैट मोटिवेशन that at least I should be able to maintain some kind of sanity throughout my entire day. So even if you have going through a tough phase, make sure that you attend the morning session, and that is going to benefit you in some way or the other. If not anything, it will help you focus on your academics better. So with this, let us start our meditation session, folks. We'll meditate for 10 minutes and then we'll go on to our journey. Let's meditate for 10 minutes, folks. If you see yesterday's newspaper, the 4th page, of course, tennis, you should be aware that Alcaraz has won the Wimbledon. So this is the first time in 20 years. In fact, more than 20 years, that someone apart from Federer, Nadal, Djokovic and Andy Murray के अलावा कोई जीता है. So he's a 20-year-old kid who's won it. So something to note. Now let's talk about serious stuff. The first
news is UK FTA. Now there is this transition in international trade which is called as जब हम open up करते हैं trade को तो we have something called as preferential trade agreements. ठीक है, एक basically एक ये linear line के अंदर जाता है ये सारी चीज़ें के पहले पहले फॉर एग्जांपल इंडिया और कोई पर्टिकुलर कंट्री है तो पहले वो ट्रेड में क्या करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट बैरियर्स खड़े करके रखे हुए हैं कि आप मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ हूँ तो पाकिस्तान के साथ मैंने ट्रेड बैरियर्स खड़े करे हुए हैं कि वहाँ के प्रोडक्ट पे मैं ड्यूटी लगाऊंगा और मेरे प्रोडक्ट पे वो कस्टम्स ड्यूटी लगाएगा. दिस इज टॉपिक टिपिकल नॉर्मल सिचुएशन दैट इज देयर. देन उसके बाद हम दोनों अग्री करते हैं, हम कहते हैं कि नो वी विल रिड्यूस टैरिफ्स ऑन सर्टेन कमोडिटीज इन ट्रेड. तो हम उसको कई बार कहते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के बाद आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर you reduce the tariff on almost all commodities except for certain commodities. That is called as free trade agreement. फिर उसके बाद आता है आपका क्या कहते हैं कस्टम्स. उसके बाद आता है आपका कस्टम्स यूनियन. कस्टम्स यूनियन के अंदर क्या करते हो कि इंडिया और पाकिस्तान मिलके आपस में एक कस्टम यूनियन बना लेते हैं. आपस में सारा ट्रेड फ्री है बट एक साथ दोनों मिलके अपनी एक बाउंड्री बना लेते हैं. एंड देन if say US is trading with India or with Pakistan, it's the same thing. तो कस्टम्स यूनियन के अंदर जो हमारा ये होता है क्या कहते हैं इकोनॉमिक बाउंड्री होती है वो सिमिलर हो जाती है. देन उसके बाद आपका आता है मॉनेटरी यूनियन. मॉनेटरी यूनियन के अंदर क्या होता है कि आपके जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो उनकी सेम करेंसी हो जाती है. फॉर एग्जांपल यूरोजोन, जैसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड यूरोजोन एंड देन EU अलग है और यूरोजोन अलग है. EU के अंदर अराउंड 29 कंट्रीज का 28-29 कंट्रीज में पढ़ लेना कौन कौन सी कंट्रीज हैं. बट उसके बाद यूरोजोन के अंदर कम कंट्रीज अराउंड 19 कंट्रीज हैं. तो पूरे EU के अंदर भी देयर आर कंट्रीज विच डू नॉट यूज यूरो एज अ करेंसी. तो वो जो EU है वो एक कस्टम्स यूनियन एक तरीके से, बट जो हमारा यूरोजोन है वो एक मॉनेटरी यूनियन है जिसके कॉमन करेंसी है. फॉर एग्जाम्पल फ्रांस और जर्मनी का जो सेंट्रल बैंक है वो सेम ही है. यूरोपियन सेंट्रल बैंक, उनकी अपनी कोई करेंसी नहीं रह गई, पहले उनकी अपनी करेंसी होती थी. तो जब आप इस एक्सटेंट तक अपना ट्रेड इंट्रैक्शन कर लेते हो, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी यूनियन. और उसके आगे होता है इकोनॉमिक यूनियन. इकोनॉमिक यूनियन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड इंट्रैक्शन वेयर योर नॉट जस्ट योर monetary policy, your fiscal policy, your labor, your capital can easily go from one country to another country, and even आपकी fiscal policies होंगी वो भी same होंगी. तो ये जो है that is an example of the highest form. अब ये आपको पूरा का पूरा वो पता होना चाहिए कि पहले PT आता है, फिर FTA आता है, फिर customs union आता है, फिर monetary union आता है, फिर उसके बाद economic union आता है. That transition you should be aware of. The other thing that you should be aware of in this particular article is something called as early harvest. Now, I think I've seen a question in UPSC prelims sometime that what is early harvest? Early harvest किस context में आता है? तो early harvest is basically जब आप negotiate कर रहे हो किसी country के साथ में FTA, और FTA का जो signing होता है it takes around 2 to 3 years. बट क्विक स्पैन के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो काम को. दैट इज कॉल्ड एज 6 मंथ के अंदर व्हाट यू स्टार्ट ऑफ योर ट्रेड नेगोशिएशन, और आप ट्रेड नेगोशिएशन करके कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करते हो. दैट इज कॉल्ड एज अर्ली हार्वेस्ट. ठीक है, थिंक ऑफ इट इज कि जैसे आपने प्रेपरेशन शुरू करी तो ऐसा तो नहीं है आपने सीधा की सीधा बड़ी बड़ी टेक्स्ट पढ़नी शुरू कर दी. आपने पहले क्या किया, सबसे पहले NCERT उठा के पढ़ ली. तो एटलीस्ट यू स्टार्ट रोलिंग, यू स्टार्ट पुटिंग the balls into motion. So rolling all the balls into motion, and that is basically the idea of early harvest. And this particular article basically talks about all of these things that यूरोपियन यूनियन और कि हम यूके के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उसमें टाइम लग रहा है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर गोइंग फॉरवर्ड द इकोनॉमिक जो हमारा ट्रेड डिस्कशन होगा विद यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ में. यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन is an example of a customs union which includes Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. Okay, so this is another example of FTA of customs union. बहुत सारे आप customs union और सर्च कर सकते हो.
वर्ल्ड में और कौन कौन से कस्टम्स यूनियन है। देन हम किस चीज के ऊपर बात हो रही है, जो डिबेटेबल पॉइंट्स चल रहे हैं, वो पॉइंट्स चल रहे हैं ग्लोबल वैल्यू चेन्स के ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिजिटल ट्रेड, रूल्स ऑफ ओरिजिन, all of these things are being negotiated upon. Now come to page number 6. Now जो फर्स्ट आपका वो है उसी के अंदर आपको एन अर्ली हार्वेस्ट डील के बारे में हम बात कर रहे हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट एन अर्ली हार्वेस्ट डील इट हैज नथिंग टू डू विद एग्रीकल्चर. ठीक है, इट हैज टू डू विद launching a softer version of FTA before realizing the final version of FTA. The other thing is rules of origin. Now when we talk about rules of origin बहुत important हो जाता है, क्योंकि origin कहाँ से हुआ है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, उसके ऊपर आप टैरिफ लगाते हो. बट कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है कई कंट्रीज से बन रहा है. फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि इंडिया में मोबाइल फोन बन रहा है, इंडिया के अंदर मोबाइल फोन जो बन रहा है उसकी सिर्फ असेंबलिंग हो रही है, जो बाकी सारा मोबाइल फोन के पार्ट्स हैं वो सारे बाहर से आ रहे हैं. तो अगर हम ये मोबाइल फोन को अगर यूके में बेच रहे हैं, तो व्हाट विल यूके डिसाइड दैट वेदर दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिया और दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मेनी अदर कंट्रीज. दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड दैट इज व्हाट इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. That rules of origin is the criteria that determine the national source of the product. Among the most contentious issues of FTA with UK, since ये जो restrictions है is based on source of import के साथ में. Then other issues, last line of this particular column, labor and environment commitments are being taken for the first time, and we are saying that they are not against our interests. Similarly, global value chains के ऊपर भी बात हो रही है. Then you can read this particular article. एक MFN पढ़ लेना, सेकेंड कॉलम में लास्ट चीज है. व्हाट इज दिस MFN? मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज जो होता है WTO का बोलता है कि जो आपका सबसे सपोज मैं 20 कंट्री के साथ या 50 कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मैं WTO का मेंबर हूँ, तो अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को कोई बेनिफिट देता हूँ, कोई मतलब फॉर एग्जांपल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है से US, और मैं उसको कुछ बेनिफिट्स दे रहा हूँ अपने साथ ट्रेड के लिए, तो आई वुड हैव टू गिव दोज बेनिफिट्स टू ऑल अदर कंट्रीज. तो जो भी आपका मोस्ट फेवरेट फ्रेंड है, वो जो भी आप उसको बेनिफिट्स दे रहे हो, यू आर ऑब्लाइज्ड एज अ मेंबर ऑफ WTO टू ऑफर इट टू ऑल अदर कंट्रीज. दैट इज कॉल्ड एज MFN स्टेटस. द अदर न्यूज, आफ्टर कुनो डेथ्स, रेडियो कॉलर्स सेट टू बी टेकन ऑफ फ्रॉम 10 चीतास. ये जो हमने चीताज लेके आए हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया, दे आर डाइंग एवरी फ्यू मंथ्स, एंड दिस टाइम इट इज बीइंग असेस्ड कि इनके जो सिम्टम्स है सारे सेम है. एंड नाउ व्हाट इज बीइंग क्वेश्चनड इज जो रेडियो कॉलर्स जो पहनते हैं ये चीताज. अब क्या होता है कि दिस टिपिकल द हैबिटेट ऑफ चीता इन अफ्रीका जो है वो ज्यादा मॉनसूनल नहीं होता, वो थोड़ा सा ड्राई मतलब फॉरेस्ट टाइप एरिया में रहते हैं, तो उनके यहाँ थोड़ा ड्राई एनवायरनमेंट होता है. यहाँ पर क्या हुआ है इन इंडिया, बिकॉज ऑफ द रेनफॉल दैट वी हैव हैड एंड हेवी रेनफॉल दैट वी हैव हैड इन द लास्ट फ्यू डेज, और वो जो पहनते हैं वो बहुत हेवी कॉलर पहनते हैं, और उस कॉलर की वजह से व्हाट इट इज बीइंग एलिज्ड है दैट यहाँ पर द स्किन गेट्स थिनर एंड देयर माइट बी क्रैक्स, एंड उसके अंदर फिर मैगट्स आ सकते हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज ऑफ विच इट इज बीइंग डिस्कस कि हो सकता है इनकी डेथ इसकी वजह से हो रही है. सो दिस इज व्हाट इज बीइंग कंटेम्पलेटेड, इसलिए रेडियो कॉलर्स आर बीइंग रिमूव फ्रॉम ऑल दीज चीतास. देन Scorpion combat jet deals not done yet, missing from final statement. अभी हमने ऑलरेडी बात करी थी कल के पेपर के अंदर कि हमने ऑलरेडी ये स्कॉर्पियन की जो है डील वो साइन कर ली है. हमने वो जो जेट क्या कहते हैं इंजन है उसके ऊपर साइन कर लिया है ऑलरेडी, बट अभी तक ये नहीं हुआ है. दे आर स्टिल इन नेगोशिएशन. फाइनल टेक्स्ट के अंदर ये सारी चीजें अभी तक नहीं है. तो दैट इज अनदर थिंग दैट यू. देन जून see spike in households taking up NREGS work. Now what we are seeing is that 2/3 of the 60,000 crore rupees जो NREGS के लिए गया था वो already exhaust हो चुका है before even completing 6 months. ठीक है, तो that means the demand of NREGS work जो है बहुत ज़्यादा high है. इनफैक्ट आज तक का अगर आप देखो 3 करोड़ से ऊपर जो डिमांड किए गए किसी भी मंथ के अंदर, तो बेसिकली कितने लोग डिमांड कर रहे हैं काम और कितने लोगों को काम मिला है, एम्प्लॉयमेंट अंडर NREGS कितना है. तो हर महीने में हम देखते हैं कि कितने लोगों ने NREGS किया है लिया है. तो अगर हम देखें पहला स्पाइक जो आया था वो कोविड के फर्स्ट वेव में आया था, फिर एक स्पाइक आया था कोविड के सेकेंड वेव के टाइम पे. बट
अब जून 2023 के अंदर व्हाई हैज दिस स्पाइक कम? तो व्हाट आर द रीजंस? क्योंकि अगर लोग एनआरईजीएस के लिए जा रहे हैं तो व्हाट इज द रीजन कि लोग एनआरईजीएस के लिए जा रहे हैं? एनआरईजीएस इज ऑलवेज अ बैकअप ऑप्शन फॉर पीपल. जब नौकरी नहीं मिलेगी तब लोग एनआरईजीएस के पास जाते हैं. सो अ हायर इंक्रीज इन एनआरईजीएस, if more people are opting for NREGS, that actually shows stress in the rural economy. जब आपके पास कोई और काम नहीं होता है तभी आप NREGS की तरफ जाते हो. And it is being said in this particular article is that because of the delayed rainfall in June, तो यूजली क्या होता है, सोइंग टाइम होता है जून के अंदर, बट क्योंकि इंडिया के अंदर रेनफॉल जो है वो डिलेड हुआ था, मानसून डिलेड हुआ था, दैट पीपल हैड डिमांडेड मोर NREGS जॉब्स इन जून. एंड इट इज एक्सपेक्टेड क्योंकि जुलाई के अंदर रेनफॉल सफिशिएंट आ गया है, इसीलिए क्या कहते हैं, जुलाई के अंदर जो डिमांड फॉर एनआरईजीएस होगा दैट विल बी लिमिटेड एज कंपेयर टू जून. दिस इज व्हाट द आर्टिकल सेज. यू कैन रीड द आर्टिकल इन डिटेल. Then page number 9, World Bank chief, municipal financing way forward for India's progress. Very very important thing, folks. I want you to read and do a little bit of research on municipal finance. और उसके लिए there is a thing called Munni bonds, MUNI, basically municipal bonds. तो अगर आप देखो throughout the world, ये और इनफैक्ट जो आप स्टेट सेंटर कमीशन के जो हम इसके बारे में बात करते हैं, व्हाट इज दैट, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं, तो फाइनेंस कमीशन के अंदर भी हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं कि जो लोकल बॉडीज हैं इंडिया के अंदर, जो सारी मेजर चीज़ें एज अ सिटीजन मुझे लोकल बॉडीज प्रोवाइड करती हैं, वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लोकल बॉडीज, वी टॉक अबाउट कि ये जो पंचायत है, अर्बन लोकल बॉडीज एंड रूरल लोकल बॉडीज हैं, यहाँ पर 3 F's मिसिंग है. व्हाट आर दीज 3 F's? यू विल सी दैट इन सिविक्स एज वेल, जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटीज में. तो फंड्स, फंक्शनरीज एंड फाइनेंस, नहीं, फंड, फाइनेंस, फंक्शनरीज एंड फंक्शंस, ये तीनों के तीनों जो हैं मिसिंग है. यहाँ पर या तो इलेक्टेड लोग नहीं होते, या तो इलेक्शन नहीं कराते, तो फंक्शनरीज नहीं है, या फिर इनको फंक्शंस जो हैं, इनके जो फंक्शंस है वो डिवॉल्व नहीं किए गए, इनको ज़्यादा फंक्शन नहीं दिए गए, और तीसरी चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर फंड्स नहीं पहुँचे हैं. ठीक है, तो इसीलिए वन ऑफ द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज ऑलवेज कि लोकल बॉडीज को फाइनेंस कैसे पहुंचेगा. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लोकल बॉडीज जो है, नाउ दे नीड टू रियलाइज, सिटीज नीड टू रियलाइज दैट दे कैन बोरो ऑन देयर ओन. उनको अपने खुद के बॉन्ड्स फ्लोट करने पड़ेंगे, अपने खुद को, जैसे एक पर्टिकुलर कंपनी होती है, एक पर्टिकुलर कंपनी अगर रेपुटेशन बना ले तो आराम से पैसा रेज कर सकती है मार्केट से, ऐसे ही सिटीज को भी पैसा रेज करना चाहिए मार्केट से, और उसके बाद फाइनेंस करना चाहिए. तो दे नीड टू सी हाउ टू मोबिलाइज योर रिसोर्सेज. तो अगर आप एक कंसेप्ट, अगर आप वो देखोगे अपना जीएस पेपर 3, तो आपको दिखाई देगा एक टॉपिक, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो ये जो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, दैट इज ये मुन्नी बॉन्ड्स इज वन ऑफ द वेज, एंड दिस इज व्हाट अजय बंगा इज टॉकिंग अबाउट, that we need to mobilize resources, and हमारा जो contribution होता है, जो revenue raised होता है, वो बहुत ही कम है as compared to GDP, as compared to foreign countries, advanced countries around 15%, 10% 15% of their GDP is being raised through municipal bonds and municipal finances, whereas in our case India's municipal bodies are very weak. Then do it in Paris के अंदर हमने ऑलरेडी जो कल बात करी थी, याद है, एक्सप्रेस पेज पे हमने बात करी थी, the three pillars being सिक्योरिटी एंड सवेरेनिटी, जिसके अंदर हम क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हैं, डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं, वेपन सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल रीजनल सिक्योरिटी इन इंडिया पैसिफिक के बारे में बात कर रहे हैं. सो दिस इज डिफेंडिंग सिक्योरिटी एंड सवेरेनिटी. The second point is deepening cooperation for global issues. Global issues में global commons को लेके हम डिस्कशन कर रहे हैं, climate change को लेके डिस्कशन कर रहे हैं, green technology को लेके डिस्कशन कर रहे हैं. And the third is people to people contact, that is basically how to involve more people. हम consulates खोल रहे हैं एक दूसरे की country के अंदर. Students are being encouraged to go to each other's country. So this is what the 3 pillars are. And what is more important is कि Paris has been a strategic partner for us for the last 25 years. We have already discussed that. When the entire world was putting sanction on us,
France came to us and had a strategic partner in 1998. And apart from that, usually हम मॉस्को पे बहुत ज़्यादा हमने 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 we put a lot of trust in the Moscow's basket कि हमें एक तो पार्टनर चाहिए in the UN Security Council to back our claims, जिनके पास वीटो पावर है. अब आज की डेट के अंदर हमारी डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी है. हम कुछ इश्यूज पे रशिया के पास जा सकते हैं, कुछ इश्यूज के पास फ्रांस के लिए आ सकते हैं, कुछ इश्यूज के लिए हम यूएस के पास भी जा सकते हैं, कुछ इश्यूज के लिए हम यूके के पास भी जा सकते हैं. तो वी हैव नाउ अ डाइवर्सिफाइड पार्टनरशिप विद दीज कंट्रीज एंड दैट इज हाउ फ्रांस एंड इंडिया आर वेरी सिमिलर, दैट बोथ ऑफ देम बिलीव emphatically in the idea of strategic autonomy. Then slow and skewed आप पढ़ सकते हो. It's about what has happened with respect to UN mission for eliminating AIDS by 2030. Then the French connection. Now the French connection is again इन्हीं चीज़ों के ऊपर इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात हो रही है. बट कि हमारा जो when we talk about कि strategic, हम कहते हैं ना strategic partnership है हमारा, तो strategic partnership बहुत सारी कंट्रीज के साथ है. 30 कंट्रीज के साथ हमारा strategic partnership है. And that is how you can probably start answering this particular question, that how is India-France relationship special? So you can start the answer by writing that we have over 30 strategic relationships with 30 countries. But among those हमारा जो फ्रांस के साथ है is perhaps one of the best relationship because of the full spectrum क्या कहते हैं strategic partnership का. It's not just in defense. It is in defense, it is in foreign affairs, it is in space, it is in climate, people to people. हर aspect में हमारा जो strategic relationship है, breadth of the strategic relationship है, that is huge. And the second is it has stood through the test of time, irrespective of what has happened, who is the partner. वो बहुत ज़्यादा ups and downs के बारे में बात करते हैं. For example, क्या कहते हैं, even with US, we've had a lot of ups and downs in our relationship, bilateral relationship. But that has not been the case in case of France. It has been consistent, it has been incremental. वो बढ़ा जा रहा है, उसका जो और उसके जो number of areas हैं वो expand हुए. The other thing, फिर ये second, if you see the first column, last paragraph, वो defense के बारे में बात करता है कि हमारे defense की कितने सारे relations हैं. Then उसके बाद second column के अंदर second paragraph Indo-Pacific के अंदर बात करता है कि France is not just a resident power but also has massive real estate in form of La Reunion Island. So read about where is this Reunion Island, where is this New Caledonian, French Polynesia and New Caledonia are in Pacific Ocean and Southern Pacific Ocean के अंदर, और ये जो है Reunion Island जो है वो Indian Ocean के अंदर है. Then and then you can read कि हम EU के साथ ट्रेड कर रहे हैं और EU के साथ ट्रेड करते हैं, EU के साथ भी ट्रेड हमारा बढ़ जाएगा. That's about it. Then the other article aiming for equity. अब RBI की बेसिकली एक रिपोर्ट आई थी कि CSR जो एक्टिविटीज़ हैं और क्या कहते हैं, इट सेड दैट हमें अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर और जनरल पॉलिसीज़ के अंदर नेट ज़ीरो जो हम एमिशन करना चाह रहे हैं बाय 2070 उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. एंड टू इनकॉर्पोरेट नेट ज़ीरो का जो गोल है, इन ऑर्डर टू डू दैट what we need is कि जो CSR फंडिंग होती है, जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबल फंडिंग होती है, वो थ्रू आउट द कंट्री होनी चाहिए, वो स्प्रेड अक्रॉस होनी चाहिए. नाउ सपोज मेरी कंपनी है और आई एम ओब्लाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 कि मुझे 2% ऑफ अपना जो प्रॉफिट है उसको मुझे CSR में डालना है. अब ये जो 2% मुझे डालना है, मैं टिपिकली कहाँ डालूंगा? वहीं पे डालूंगा ना जहाँ मेरा ऑपरेशन है, क्योंकि वहीं पे अगर डालूंगा, NGO से काम करूंगा, तो मेरा एक सोशल स्टेटस बढ़ेगा और मुझे इजीली अलाउ किया जाएगा अपना काम करने वहाँ पर. तो पीपल विल बी एसोसिएटेड विद मी, आई नो पीपल. तो यूजुअली क्या होता है कि जहाँ पर कंपनीज एस्टैब्लिश्ड होती हैं वहीं पे वो CSR की एक्टिविटी कर रही है, एजुकेशन भी वही करवा रही है, हेल्थ केयर के हॉस्पिटल भी वही खोल रही है. तो उससे क्या होता है, ऑलरेडी जो डेवलप्ड स्टेट्स है जिनके अंदर ऑलरेडी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, उन्हीं के अंदर फर्दर CSR की एक्टिविटीज, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटीज हो रही है, वो ही उन्हीं के अंदर ही हो रही है. What this particular जो notification है RBI का, वो कह रहा है कि do not just invest in that state, invest in all across. तो आपको नॉर्थ ईस्ट में जाके भी इन्वेस्ट कर लो, so that your footprint is throughout the country and उसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो एक्टिविटीज होंगी, उसके जो बेनिफिट्स होंगे पूरी कंट्री को मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस अगर कोई एक्टिविटी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स, तो उसको नॉट जस्ट महाराष्ट्र में करना चाहिए, उसको करना चाहिए नागालैंड में जाके, मणिपुर में जाके और एरियाज में जाके भी करना चाहिए.
That is what the article is talking about, but at the same point of time tracking this is going to be very difficult, और इसके लिए ग्रास रूट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी हेल्प ले सकते हैं. एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग एग्जांपल्स दैट इट हैज टॉक्ड अबाउट इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम. इफ यू डोंट नो अबाउट दिस प्रोग्राम, प्लीज रीड अबाउट दिस प्रोग्राम. कि हमने अराउंड 200 डिस्ट्रिक्ट्स को इंडिया में हमने डाला हुआ है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि सबसे घटिया डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे कंट्री के. अराउंड 700 डिस्ट्रिक्ट्स में से 200 डिस्ट्रिक्ट्स हुए हैं जिनके सारे पैरामीटर्स बहुत खराब हैं. एंड इनके यहाँ पर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा के आप इनको बोल रहे हो दैट यू नीड टू परफॉर्म वेल ऑन दीज ऑल दीज पैरामीटर्स. तो उनको जैसे IMR, MMR, मैल न्यूट्रिशन, नंबर ऑफ NREGADS, तो उनको बहुत सारे इंडिकेटर्स दे दिए जाता है. उनको बोला जाता है कि परफॉर्म वेल ऑन दीज indicators so that we can reduce poverty in your districts. तो अब आप क्या कर सकते हो, these companies can come in touch with the state governments and वो जो aspirational district वाला जो प्रोग्राम है उसके साथ मिलके they can work on it, और उसके through they can implement their CSR funding. Then you can read this article, Together We Move. Together We Move is basically an article which talks about India-Bangladesh relation. और इसके अंदर जो लास्ट 2 कॉलम्स हैं, these are more important, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश इंपोर्ट सो मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया फ्रॉम इंडिया, एंड देन हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स कैसे कैसे हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के और ट्रांजिट के रिलेशन है वो कैसे हैं. और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लास्ट कॉलम है, उसके अंदर बहुत सारी रिवर्स के बारे में बात करी हुई है. आई वॉन्ट यू टू सी दिस रिवर्स इन दी फिजिकल मैप की ये रिवर्स कौन कौन सी हैं, एंड इंडिया से कौन कौन सी रिवर्स बांग्लादेश में चली जाती हैं और वो उसके नाम क्या हो जाते हैं वहाँ जाके. ठीक है. So 6 rivers, Manu, Mauri, Khowai, Gomti, Dharla and Dudh Kumar. So read about all these rivers. और उसके अलावा what is this Teesta agreement that we have signed with Bangladesh. Then if you want to read, you can actually read the article on this thing. You can read the article on Save the Water, but हम इसके ऊपर कई सारी चीज़ें बात कर चुके हैं. So I'm not talking about this. Then come to explain page. Explain page के अंदर all 4 articles are good. The first article, more cash less grain, is basically अब क्या हुआ है कि पिछले कुछ टाइम से अब आपको ये ग्राफ्स आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि हमारे स्टॉक्स कितने होते हैं, बफर स्टॉक्स कितने होते हैं. 1 जुलाई को आर नॉर्म इज कि हमारे पास जो टोटल फूड ग्रेन्स होने चाहिए वो अराउंड होने चाहिए 411 लाख टन्स, और उसमें से राइस इतना होना चाहिए और व्हीट इतना होना चाहिए. सो 275 मिलियन क्या कहते हैं लाख टन्स ऑफ व्हीट एंड 135 मिलियन टन्स ऑफ राइस. अब द इशू इज कि पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखें पिछले 6 सालों से, तो हमारा जो बफर स्टॉक है, जो हमने जो सेंट्रल पूल के अंदर स्टॉक रखा हुआ है वो सबसे कम है. अगर आप 2018 के बाद देखो तो 2018 के बाद 2023 के अंदर इट्स दी लोएस्ट. एंड बिकॉज बफर स्टॉक जो है हमारा कम है, ऑल्दो जितना रिक्वायर्ड है उससे तो ऑलमोस्ट डबल है, बट जितना पहले कुछ सालों में था उसने उतना नहीं है. एंड उतना क्यों नहीं है? बिकॉज इन दी लास्ट 3-4 ईयर्स व्हाट वी हैव डन इज, जब हम 2020 में जब कोविड आया तो हमारे पास पैसे नहीं थे लोगों को देने के लिए. जब हमारे पास पैसे नहीं तो हमने क्या किया था, वी गेव 50 किलोज ऑफ फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट. 25 किलो अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 1, 2, 3 and 3 रुपीज के ऊपर जो हम देते हैं, एंड 25 kgs कम्प्लीटली फ्री. तो 50 किलो खाना दे रहे थे इस साल से. और तो हमने 2 साल के अंदर अपना खाना दे दे के अपना जो हमारे फूड स्टॉक्स हैं, जो हमारे पास बफर स्टॉक है वो कम हो गया है. बट अब इस साल से क्या होना शुरू हो गया है कि हमारे बफर स्टॉक्स कम हो गए, थोड़े से कम हो गए, एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग फूड ग्रेन्स नाउ वी आर गिविंग मनी. फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर याद है OMSS की पूरी स्कीम के अंदर हमने पढ़ा था कि OMSS के अंदर अब वो इट इज नॉट अलाउड टू बाय एंड सेल commodity दिस थिंग. तो उनको अपना वो तो प्रॉमिस तो फॉलो करना है. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग ग्रेन्स नाउ स्टेट्स लाइक कर्नाटका डायरेक्टली गिविंग मनी टू पीपल कि ये लो पैसा ले लो और उससे फूड ग्रेन अपना खरीद लेना. सो दिस इज द इंटायर थिंग दैट वी हैव मूव्ड फ्रॉम बेसिकली मोर ऑफ ग्रेन्स एंड लेस ऑफ कैश टू more of cash giving cash and less of grains. That is what the situation is, and this is what the article is talking about. And because there have been क्या कहते हैं इस साल जो हमारे पास जो सोइंग है वो भी लेट हुआ है,
और हमारे पास जो स्टॉक्स हैं वो भी कम है, इसीलिए वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस साल राइस के ऊपर भी बैन लगेगा एक्सपोर्ट के ऊपर, एंड वीट के ऊपर भी बैन ऑलरेडी लगना शुरू हो गया है फॉर एक्सपोर्ट्स। एंड सेकंड लास्ट पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया वीट के केस में इतना बड़ा मेजर प्लेयर नहीं है वर्ल्ड में, बट लास्ट ईयर इंडिया ने बहुत ज्यादा वीट एक्सपोर्ट किया था। बट यूजुअली व्हेन इट कम्स टू राइस, इंडिया इज द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। 40% ऑफ जो ग्लोबल ट्रेड होता है सीरियल के अंदर वो इंडिया के थ्रू होता है। देन वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स की मूवी है, क्रिस्टोफर नोलान है। एक डायरेक्टर, अगर आपको पता हो, हॉलीवुड के अंदर बहुत अच्छी मूवीज बनाता है। He's made a movie on the father of atomic bomb, Oppenheimer, and this particular article says Oppenheimer के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो आर्टिकल है ये आप ethics या essay में यूज कर सकते हो। The man who basically made the atom bomb was against the use of atom bomb, and once he made the atom bomb, he quoted Gita. In 1950s he quoted Gita, 50s में 60s में he quoted Gita, that Krishna जो होते हैं, he was trying to pursue the Arjuna, that what he should do is he should do his duty and impress upon him, and he says that अगर अर्जुना को दिखाने के लिए कृष्णा had taken up arms and said that now I've become death, destroyer of worlds. So once he had made the atom bomb, he said that now I have made this, I have maybe pushed the world to the brink of destruction. And that is what you can take up for your ethics and your essay as well. So you can read this particular article, और उसके बाद फिर you have something called as hydrogen bomb. तो आप अगर आपको research करना, आप पढ़ सकते हो। hydrogen bomb is typically a combination of fission and fusion reaction. उसके अंदर fission और fusion दोनों होता है। नॉर्मल जो आपका एटम बॉम्ब होता है उसके अंदर सिर्फ क्या कहते हैं फिजन का रिएक्शन होता है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दिस फिजन रिएक्शन, व्हाट इज दिस फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन के केस में दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स एक साथ मिल रहे हैं और उसमें जो एनर्जी मिलती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। फॉर एग्जांपल सन के अंदर इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। बट टिपिकल यूरेनियम डिके जो हम नॉर्मल करते हैं वो फिजन रिएक्शन का है। एक एलिमेंट जो होता है मल्टीपल एलिमेंट्स में डिवाइड हो रहा है। देन why have Hollywood actors have joined screenwriter strike? We have already discussed कि the role of AI better pay के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। तो you can read this article, and again this article has application in ethics as well. Then debate over age of consent for data protection bill. This again we have talked about कि बहुत सारे पहले जो हमारा जो initial data protection bill आया था और जो initial even जो draft के बारे में बात हुई अभी, उसके अंदर इट वॉज हार्ड कोडेड एज 18 ईयर्स कि 18 ईयर्स के अगर आप हो गए तो ही यू आर अलाउड टू बेसिकली बी ऑन एनी ऑफ दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड आपको अपने पेरेंट्स का कंसेंट लेने की जरूरत होगी टू बी ऑन सोशल मीडिया दिस थिंग। तो अब क्या बात हो रही है कि बहुत सारी यूएस के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, बहुत ऑस्ट्रेलिया के अंदर, in all of these countries the age of consent for being on social media is 16 years या 14 years। उससे कम अगर होता है तो पेरेंटल आपको अप्रूवल चाहिए, बट अगर उससे ज्यादा है तो आप सोशल मीडिया पे आ सकते हो विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो और ये एज ऑफ कंसेंट जो है बहुत चीजों के अंदर आजकल आ रहा है। पॉक्सो के अंदर भी हमने एज ऑफ कंसेंट के बारे में बात करी थी, इसके अंदर भी बात करी। तो दिस इज अ टॉपिक विच इज कमिंग इन न्यूज विद मल्टीपल एस्पेक्ट्स, तो इसका ध्यान रखना। दैट्स अबाउट इट। मैं आपको बस हिंदू के अंदर एक आर्टिकल बता देता हूँ जो मुझे अच्छा लगा था, जस्ट इन केस इफ यू आर रीडिंग हिंदू। एक गवर्नमेंट सेट्स अप न्यू पैनल टू रिव्यू ऑल एनएसओ डेटा। तो गवर्नमेंट ने नया एनएसओ के डेटा के लिए ऑलरेडी वो जो डिबेट चल रही थी शमिका रवि के बीच में, विवेक देबरॉय के बीच में और प्रणब सेन के बीच में, उसी के चक्कर में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एनएसओ का एक नया पैनल सेटअप कर दिया विद प्रणब रॉय एज द हेड। सो यू कैन रीड दिस आर्टिकल। देन अब सीधा एडिटोरियल के ऊपर आ जाओ। Editorial में one article that you can read is Indian conglomerates are getting too big for comfort. That means India की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही हैं और उनकी वजह से जो बिजनेस है, जो उनका जो इम्पैक्ट है, जो फुटप्रिंट है, वो इतना बड़ा हो रहा है कि छोटे छोटे प्लेयर जो है उनके साथ में कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। सो दिस इज अनदर आर्टिकल दैट यू कैन रीड। देन व्हाट यू कैन ऑल्सो रीड इज आपका जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे है, एक राहुल गांधी कन्विक्शन के केस में क्या क्या इश्यूज होते हैं, और दूसरा हाउ गैप्स इन क्लाउड सिस्टम
configuration could expose sensitive data to user. तो ये जो cyber security है उसको लेके important है मेंस के लिए, इसलिए you can read this particular article that what is this cloud के ऊपर डेटा क्यों स्टोर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं क्लासेस रिकॉर्ड करता हूँ ये क्लाउड के ऊपर भी चली जाती हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल जब आप कहते हो कि मैं गूगल ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ नथिंग बट यूजिंग क्लाउड सर्विसेज. ठीक है, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल. तो ये जो है हमारे जो क्लाउड सर्विसेज हैं कई बार ये सेफ नहीं होती और इसके अंदर कई बार आपका डेटा लीक हो जाता है एंड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. So this is what the article is talking about. So read about this cloud architecture and how you can make it more safe. So this is all about our newspapers, folks. What I will do is I'll upload yesterday's class, today's class, and even Friday's class. ये मुझे तीनों class upload करनी है. I'll upload them today and I'll send it to you by 12 o'clock. But I will still expect folks कि आप class में आओ, physically आओ, so that you get that habit. आपका वो एक रूटीन बिल्ड होता शुरू हो जाएगा. Like अभी भी हमारी क्लास में अराउंड there are 50 students, usually around 20-25 students आते हैं. तो the idea is to remain consistent, folks. Make sure you are consistent with the class. उससे आपको थोड़ा बेनिफिट ही मिलेगा. चलो, so thank you very much. I'll see you tomorrow at 5 AM.